Dear students, today we are going to start a new paper, May-June 2024, and spreadsheet part we are going to solve. So the files that are given to us is splendid.csv and the other file is diverse.csv. So you just create your evidence file first of all, and then screenshots that given in this task we place in evidence file. So I hope you everyone know about evidence file, how to create. So just I go to our source files of uh, paper, and I open the evidence file first of all, or create a new evidence file, because in MS Word you will get the evidence file, but in the MS spreadsheet or web authoring paper in this folder, evidence file is not given here. So you have to create this evidence file with this name uh, in your work area. So I am going to open MS Word and create a blank document and save this document, browse on the desktop, sorry, file, save as, browse, and desktop, our work area, give the file name underscore pk262 or any center number that you are having, and give your candidate number and save this file. So evidence file we created, and again we have to give the header and footer on the document. So I also make a header here, and just close. So evidence file is ready, and now we are going to start our task, spreadsheet task. So we have to first open these two files that are given in our source files, and I paste these files in our work area folder. Here is our work area folder, and I just copy these two files to this place. You also can open this and again save as in your work area, that is better, but I just copy these two files in our work area in a new folder, source files, and paste it. Now I am going to open this file and open the diverse files. So both files are here. So what we do on these two files, so uh, first we save this file with the name of in Excel format, splendid, and underscore your center number and candidate number. So I just save this file in work area, splendid underscore pk262 underscore 004 or any candidate number, and just save in Excel workbook, saved. Now I am going to read what we have to do. In our row number 9 to 32 will show the number of sightings of the splendid toadfish on each reef for 1 week in February. Row number 35 onwards show the detail of all sightings. यानी कि वो बता रहा है कि एक्सेल की इस शीट में दो पार्ट्स हैं, एक तो आपके रो नंबर 9 से लेकर ये नंबर ऑफ साइटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, बट इन बॉटम साइड आपको रीफ का डाटा जो है यहाँ पर दिया गया है, और इसमें नेम टाइप ये हमारे पास अवेलेबल, यानी कि शीट के दो पार्ट्स हैं, एक ये नीचे आपको नज़र आ रहा है और एक आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है। और यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ, इस पेपर में आप काउंट इफ एस और वी लुकअप
वगैरह आप यूज़ करेंगे और बहुत ही इसकी प्रिंटिंग में भी आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी फाइल को देखें तो क्योंकि डाटा हमारा अवेलेबल है इन वर्टिकल, सो वी हैव टू यूज वी लुकअप फार्मूला नॉट द each lookup. So again I go to the paper. Place your name, center number and candidate number in left line in the footer side. So first of all I use and add the footer. So in bottom side, in the footer side, go to footer, and in left side I just put the name, center number and candidate number. And in the next line, this is given here, place the automated file name with no file path. Path नहीं होना चाहिए, just only file name होना चाहिए in the right of the footer. तो ये भी right होना चाहिए in the footer side. तो right हमारे पास यहाँ पर आ गया. In our file document, just click here on file name. And now I am going to click on normal button and close this header and footer. So header and footer added. Our first formula is place a replicable the formula of cell C35. Look up the type of divers using their name. इनके नेम से सर्च हो दूसरी फाइल में से डाइवर्स की टाइप हमें ऐड हो जाए और इसको हमने पेस्ट कहाँ करना है फार्मूले को C35 यहाँ पर ये हमारे पास सेल है तो फाइल ऑलरेडी हमारे पास ओपन है दूसरी फाइल भी इज इक्वल टू वी लुकअप नेम को लुकअप करें B35 फ्रॉम टेबल अरे so I just select the all data and again alt tab press comma now our कॉलम नंबर क्या होगा हमें टाइप सर्च करनी है और टाइप हमें दी गई है सी में तो कॉलम नंबर 3 बनता है यहाँ पर 3,0 and you can see Lobo is a dive master and here you find Lobo is a dive master. Our formula is correct here. So just I replicate this formula in the bottom side in the end and double click here to display all the results. So I just control S press, save this 7 number marks of this formula. Now in B3 cell we have to count the total number of sightings in 7 days periods. So हमें टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स इस सेल में B3 के अंदर हमें लेके आनी है एंड यू नो क्योंकि ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है तो हमें यहाँ पर काउंट ए का फार्मूला यूज करना होगा काउंट करने के लिए काउंट ए स्टार्ट कहाँ से होगा इनके नेम से और एंड वाले सेल तक आप इसको लेके जाएं एंड B35 to B75 and just close it. Total number of sighting is 41. Now in the next formula in B34 formula count the total number of sightings 7-day period where photograph was taken. अब वो कहता है कि सिर्फ उनको ले जिनकी फोटोग्राफ टेकन है बाकी को ना ले देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फोटोग्राफ जिनके साथ यस आ रहा है कुछ जीपीएस है जिनके साथ यस आ रहा है यहाँ पे हमें फोटोग्राफ वाले को काउंट करवाना है बट ओनली यस नॉट द नो तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फार्मूला यूज करेंगे काउंट इफ एंड रेंज क्राइटेरिया रेंज इज आवर फ्रॉम E35 to E75 E35 to E75 and criteria is yes जिसके अंदर हमारा यस हो नो वाले को ना लें
नंबर ऑफ साइटिंग्स विद द फोटोग्राफ एंड जीपीएस। यहाँ पर उसने एक हमें नई चीज दे दी है कि नंबर ऑफ काउंटिंग्स करनी है, बट जिसमें फोटोग्राफ भी यस आ रहा हो और जीपीएस भी यस आ रहा हो। तो काउंट इफ एस, हम वो यूज काउंट इफ एस फार्मूला फ्रॉम हियर। इफ इन इफ एस फार्मूला यू हैव क्राइटेरिया एंड कंडीशंस बोथ। आपको मल्टीपल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं इन मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज। तो काउंट इफ एस को हम यूज करेंगे। अगेन आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस। आवर फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि पहली रेंज हम लेंगे फोटोग्राफ वाली ही, E35 टू E75, और ये जो यस है कॉमा। अब क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, F35 टू F75 हमारा जीपीएस वाला कॉलम, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू यस ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसमें हमारे 30 इसलिए आए हैं कि कुछ के हमारे जीपीएस नो थे तो उसने उन नो वालों को भी निकाल दिया। अब ये भी हमारे इनके यहाँ पर एंड ऑपरेटर ने काम किया, और ये जो F35 से लेकर हमारा F75 था यस को भी लेके आया। यहाँ से इसको बड़ा केयरफुली आपने इस तरह के फार्मूले को यूज करना है। अब लास्ट क्वेश्चन, no, last one not. Place the formula in B5. हाँ ओके, मैंने अभी यही किया। जीपीएस लोकेशन और फोटोग्राफ दोनों का जिसके साथ है तो उसको वो लेके आए। 6 number is replicate the formula in B9. Display the number of sightings with reef where the GPS and photograph is taken. हमने फार्मूला पेस्ट करना है यहाँ पर B9 के अंदर, बट वो कहता है कि रीफ नेम, मतलब इस रीफ नेम कितनी दफा रिपीट हो रहा है, बट रिपीट कहाँ हो रहा है कि जहां पर आपको फोटोग्राफ भी यस आ रहा हो और जीपीएस भी यस आ रहा हो। मतलब एक नेम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम है तो ये कितनी दफा रिपीट हुआ है दोनों के साथ यस यस के साथ। सो हियर द फार्मूला इज यूज्ड अगेन इफ काउंट इज इक्वल टू काउंट इफ एस। अब पहला क्राइटेरिया तो हमारा, अब 3 क्राइटेरिया यहाँ पर आ गए। एक तो हमारा नेम ढूंढना है यहाँ से, सो रीफ नेम इज फ्रॉम बी D35, so D35 to D75, एंड क्राइटेरिया क्या होगा कि यहाँ पर ये नेम होगा, इसको सर्च करेगा। ठीक है, इनके रीफ नेम को हाउ मेनी टाइम्स ये काउंट आ रहा है उसको काउंट करेगा। सेकंड क्राइटेरिया इज आवर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का हमें पता है कि E35 से E75 है, सो E35 to E75 and yes, and the last criteria for GPS is F35 to F75 and yes। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें हमने क्योंकि नीचे डुप्लीकेट करना है सो हमारे पास अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे बदल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना है। सो वी जस्ट एब्सोल्यूट दिस फर्स्ट range, press F4 button, E35 to E75, also press F4 button and absolute it, F35 to F75 also absolute it। इसको एब्सोल्यूट नहीं करना, वाई, क्योंकि ये अगले सेल में ऑटोमेटिकली A9 होगा, देन A10, देन A11, ऑटोमेटिकली ये बदलता रहेगा। बट ये रेंज तो हमारी फिक्स्ड है D35 से E30, ये नहीं बदलेगी। इसमें से ये नेम को फाइंड कर रहा है, ये यस वाले को फाइंड कर रहा है, ये यस वाले को फाइंड कर रहा है।
तो आप इसको केयरफुली इस फार्मूले को लगाएंगे इस तरह से और एंटर। अब देखें ये फर्स्ट नेम जो है वो 1 टाइम रिपीट हुआ है, और अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे रेप्लिकेट करता हूँ डाउन इन द डाउनवर्ड्स 32, देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं हुए, 0 आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये फार्मूलाज जो थे वो हमने लगा दिए। नेक्स्ट वर्क इज प्रेजेंटेशन, इसकी ज़रा गुड करनी है। उसमें देखें ये भी हमारा सेंटर लाइन है, यहाँ से नंबर ऑफ साइटिंग सेंटर लाइन है, ये हमारी लेफ्ट पे आ रहा है। और सेकंड वन इज मर्ज एंड सेंटर फ्रॉम ए एंड बी, एंड font size of the text is raw 1 to 120 पॉइंट्स। ओके, पहले इसको ज़रा मर्ज कर लें, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर 22 पॉइंट्स। ये हमारा देखें सेंटर में आ रहा है, इसको सेंटर कर दें। नंबर ऑफ साइटिंग्स इज आल्सो इन सेंटर, so just select and press center. These are reef name, and these are bold, and a little bit font increase, and merge and center, font size increase, and wrap text apply, bold, also bold this. These columns are on the right side, so I just go with the right side, and in the bottom side these are also from the in the right line, so I right align them. So I save this spreadsheet, Control S, work done. Next question is this, select only cells A1 to C5. So now we are going to in the printing side. अच्छा, इस पेपर में प्रिंटिंग भी हमारी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की है, आपने बड़े गौर से इसको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिंट इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन और फार्मूला डिस्प्ले। फार्मूला डिस्प्ले के साथ इसको लैंडस्केप के साथ करना है। कॉलम एंड रॉ डिस्प्ले होने चाहिए, और फुली विजिबल कंटेंट भी हमारे आने चाहिए। तो ये ज़रा इसको पहले कर लेते हैं। सिंपली जस्ट गो टू फार्मूला, शो द फार्मूला, सिलेक्ट द ऑल शीट एंड डबल क्लिक हेयर। अब इससे क्या है कि आपका तमाम कंटेंट शो होना चाहिए, नीचे से भी और इसकी इस साइड से भी, ठीक है। कोई भी फार्मूला मैंने क्या किया, सिलेक्ट मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम के ऊपर आके बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दी। अब जस्ट प्रेस कंट्रोल पी एंड चूज हेयर लैंडस्केप ओरिएंटेशन and A4 size, because mostly we use A4 size paper. In page setup, click on sheet and click row and column heading, just on this, and you just print out, get the print out. तो अब आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको फिट कॉलम टू 1 पेज कर देंगे, बट इसमें प्रिंट निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपको प्रिंट फुली विजिबल और पढ़े जा रहे हो तो इस तरह से भी आप प्रिंट ले सकते हैं, बट आप कोशिश करें इसको नो स्केलिंग पे लेके इसको फुली विजिबल, यानी कि ऊपर वाले इस तरह से आ जाएं और बाकी नीचे वाले आपके कुछ इस तरह से प्रिंट आ जाएं। तो अगर आपको यहाँ से अच्छा ना लग रहा हो तो आप इसको यहाँ से फिट शीट ऑन 1 पेज भी कर सकते हैं, बट ये मेरा नहीं ख्याल कि मूवी शीट बहुत बड़ी है तो ये फुली विजिबल नहीं होंगे। फिट कॉलम ऑन 1 पेज आप कर लें तो ये ज़रा बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिट कॉलम ऑन 1 पेज पे आप प्रिंट निकाल लीजिएगा फार्मूला के साथ। सेकंड पेज विदाउट फार्मूला, अगेन यू जस्ट डबल क्लिक हेयर, तमाम जो भी सेल्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगला काम हमारा क्या होना है वो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, और इसमें स्क्रीनशॉट भी लेना है जो कि एविडेंस डॉक्यूमेंट में स्टेप नंबर 9 पे लगाना है हमने जाके।
उसका भी प्रिंट लगना है। तो पहले देखें वो हमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट rows 1 to 8 and only the rows between 9 to 32 with sightings took place. Screenshot of method used to select the rows 9 to 32. Place the screenshot in evidence document. अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है और ये साइटिंग, जहाँ पे साइटिंग आपको आपकी टुक प्लेस हुई है, जहाँ पे नो आ रहा है यानी कि जीरो आ रहा है काउंट, तो वो उसको आपने नहीं लेना जहाँ पे जीरो आ रहा है। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन में क्योंकि स्क्रीन शॉट एविडेंस लगाना है, फिर उसके बाद में प्रिंट आउट्स भी लेने हैं और यहाँ पे प्रिंट आउट आपने पोर्ट्रेट में लेने हैं, कॉलम विजिबल होने चाहिए और A4 वगैरह होना चाहिए। सिंगल पेज पे प्रिंट आउट अभी आपका आना चाहिए। और ये यहाँ पर एक उसने क्योंकि सिंगल पेज पे क्योंकि लेना है कि हमने लेना भी सिर्फ इन्हीं सेल्स का है, तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। एक तो आपने इन दोनों जो हमारे रीफ नेम और साइटिंग्स हैं इनको आपने फिल्टर आउट करना है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ से फिल्टर को ऑन करने के बाद नंबर ऑफ साइटिंग्स जीरो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइटिंग्स जीरो को ऑफ कर दें एंड ओके। अब आपको सिर्फ वो नज़र आ रहे हैं जो कि जीरो है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको इस साइड पे करके दिखा रहा है। अब आप ये देखें, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे जाके एक कस्टम क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, कस्टम फिल्टर एंड डस नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो अभी आपने स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं और यहाँ से जो अभी कस्टम क्राइटेरिया लिया है इसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी कि स्क्रीनशॉट लेने का मेथड ये है, सिंपली इतना इसको आप स्क्रीनशॉट बना लें और वर्ड पे आके स्टेप नंबर 9 इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हैं, आप जस्ट ज़ीरो को ऑफ करके तो इस एरिए का इतना स्क्रीनशॉट बना लें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें इसकी जगह पर, ठीक है। और फिर आप इसको अलग से पेस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, सेकंडली अभी उसने ये कहा कि रो नंबर 1 to 8 एंड 9 to इसका प्रिंट चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन प्रिंट भी हमें यही चाहिए, रॉस 1 to 8 एंड रॉस 9 to 32 और उसमें जीरो वाले डिस्प्ले ना हो। अब इसको सिंगल पेज पे आपने प्रिंट लेना है। सो जस्ट यू सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक कंट्रोल P। अभी आप डिस्प्ले देख रहे हैं कि सब कुछ सारा ही नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड कॉलम हमारे ऑलरेडी डिस्प्लेड हैं, बट आपने प्रिंट एक्टिव शीट की जगह पे प्रिंट सिलेक्शन ओनली कर लेना है। प्रिंट सिलेक्शन ओनली करने से क्या होगा कि जो आपके पास सिर्फ नजर आ रहा है, जितना आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही डाटा प्रिंट होगा। सो सिंपली यू सिलेक्ट दिस एंड फिट कॉलम ऑन वन शीट और फिट शीट ऑन वन पेज अगर आपकी डिस्प्ले हो रही है। और मेक श्योर आपका सेंटर नंबर, नेम और ये जो आपकी फाइल नेम थी जो आप फुटर में आपने डिस्प्ले करवाई थी वो आपकी होनी चाहिए। तो अब आपने इसको प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पेपर था, दैट वी सॉल्व दिस पेपर एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। किसी जगह से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। काउंट इफ S
को आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पेपर में समझा, और अब ये किसी भी पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक यू कैन सॉल्व। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं।